کہ ہم اس کے حضور آتے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج بہت خوبصورت وقت ہے جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہم نے کس لیے ٹھہرایا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پاک شراکت. اس کے لیے ایک اور لفظ کلام مقدس میں مرقوم ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے اس کے لیے لفظ؟ نہیں بولا کیجیے. سامنے آ جائے بیٹا, ادھر سامنے آ جائے, مجھے نظر آنا چاہیے. تھوڑا سا مجھے نظر آیا آپ سب لوگ. ہاں تھوڑا سائڈ پہ آ جائیں, پیچھے ادھر آ جائیں, سامنے آ جائیں. آئی کانٹیکٹ سے ہمیں پتا چلے کہ کون کون خدا کا کلام سن رہا ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا کے کلام کو بڑے غور کے ساتھ, دھیان کے ساتھ سننا. آج کا جو میسج ہے وہ اشعیا ربانی کے تعلق سے ہے. کس کے تعلق سے؟ اشعیا ربانی کے تعلق سے ہے. اور اشعیا ربانی کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے. مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آگے ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا ادھر کون ہے. پھر پیچھے پیچھے ہو جائیں ذرا پلیز, جگہ خالی ہے, ایزی ہو جائیں, تاکہ ہم آج تھوڑا وقت ہے خدا کے کلام کو جو ہم دیکھیں گے. یہ آج کا میسج جو ہے بہت خاص ہے. ہاللیلویا. یہ نارمل نہیں ہے آج کا میسج. اور آج جو ہم قربانی دینے کو جا رہے ہیں یہ کوئی نارمل قربانی نہیں ہے. آمین. سو آج کا جو عنوان ہے وہ اشعیا ربانی ہے. اور آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جی بولے. یس, یسوع مسیح کے خون اور روٹی میں, یعنی بدن و خون میں شامل ہونا. آمین. کوئی اور کسی کے پاس اس سے اچھا جواب ہو؟ میرے خیال میں یہ سب سے اچھا جواب. کوئی اور کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں؟ میری یاد میں ایسا ہی. یس, میری یاد میں ایسا ہی کیا کرو. اور کلام مقدس میں اشعیا ربانی کے تعلق سے مسیح یسوع نے واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے, اپنے بدن اور خون کے بارے میں بتایا ہے کہ یسوع مسیح کا بدن اور خون ہماری زندگی کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے. آمین. اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پرانے عہد نامے کے اندر بھی کیا اشعیا ربانی ہوتی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ہاللیلویا. جی ہاں جی, کوئی بھائی بہن. ہمیں کلام سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بھول جاتے ہیں, ہم اگنور کر جاتے ہیں. لیکن کلام مقدس اشعیا ربانی کے تعلق سے ہمیں بہت تفصیل سے بتاتا ہے. یہ نہ صرف عہد جدید کے اندر نظر آتا ہے بلکہ عہد عتیق کے اندر بھی ہمیں کلام مقدس میں یہ باتیں نظر آتی ہیں. جو کہ آج کلیسیا جو ہے وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات و برکت ملی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل باغ عدن سے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ تھا. آمین. اور اس کے فضل کے وسیلے سے, اس کے بیٹے کے آنے کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجات ملی. اب یسوع مسیح جب اس دنیا میں آ گئے, ان کے کفارے کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی. ہم جس چیز کے حقدار نہیں تھے, جیسے پاس صاحب نے دعا کی کہ ہم اس چیز کے حقدار نہیں تھے, ہمیں وہ چیز بیانے میں دے دی گئی, تحفے میں دے دی گئی. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. آمین. ہم خداوند کے جلال کے لیے زور سے تالیاں ماریں, کیونکہ خدا نے ہمیں وہ نعمت تحفے میں دی ہے, ہمیں اس نے محبت کے ساتھ دی ہے. آئے میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب ہم نکالیں گے. اسے کوچ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے. ایکڈس کی کتاب اس کا 12واں باب ہے. خروج 12 باب. اگر کوئی نکال سکتا ہے پہلے تو آمین بول سکتا ہے. اور یہاں ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کس طریقے سے ہم سے کلام کیا اور کس طریقے سے خدا نے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے توفیق بخشی. جی پیسہ پڑھیے گا خروج کی کتاب اس کا 12واں باب, اس کی 21 آیت سے 27 آیت تک. کسی اور نے نکال لیا ہے؟ جی اونچی آواز میں ذرا پڑھیے گا, ہم اسے غور سے سنیے گا. جی 21 آیت سے 27 آیت تک. تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے موافق ایک ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا. اور تم روفے کا ایک گچھا لے کر خون میں جو باسط میں ہوگا
डबोना और उसी बासत के ऊन में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना आमीन, आमीन, जाए। आमीन, हालेलुया। अब ये जो कलाम है ये खुदा ने किसको दिया? बुजुर्ग मूसा के जरिए बनी इस्राएली कौम को दिया। आमीन। और बनी इस्राएली कौम के साथ साथ ये पैगाम मेरे और आप तक भी आज पहुंचता है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक। आमीन। तो यहां कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने एक बहुत बड़ा काम जो है वो बनी इस्राएली कौम के अंदर किया था, क्योंकि वो सीरी में चले गए, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हकदार नहीं थे। लेकिन खुदावन ने उनकी कराने की आवाज आसमान से सुनी, और खुदा ने कहा बुजुर्ग मूसा को कि मैंने अपने लोगों की आवाज सुनी है। हालेलुया। और जब खुदावन ने उनकी आवाज सुनी तो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कहा कि अब उनको उस जगह से निकाल ले, क्योंकि वो सीरी में चले गए हैं। आज हम भी बहुत दफा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से असीरी में चले जाते हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर करता है, और यह काम खुदा ने बनी इस्राएली कौम के साथ किया। और कलाम यह कहता है कि वो ऐसी असीरी में चले गए थे जिसे हम ECL कहते हैं। कोई जानता है कि ECL से क्या बनता है? हालेलुया। इसका मतलब बनता है एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट में। और जब एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट में किसी भी पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट लिस्ट में डाल दिया जाए तो वो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। आमीन। क्योंकि वो एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट में ECL में आ जाता है। और ये पाकिस्तान का कानून है कि जिस किसी का भी पासपोर्ट ECL लिस्ट में आ जाएगा वो पूरी दुनिया में सफर नहीं कर पाएगा। और यही प्रॉब्लम जो थी बनी इस्राएली कौम के साथ थी, जिसके कराने की आवाज खुदावंद ने सुनी। आमीन। और खुदा ने उनको निकाला, और जब निकाला तो तब पहली फसा तैयार की गई। कितनी? पहली फसा तैयार की गई। और खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से जो बातें की, लिखा है कि तब बुजुर्ग मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, जैसे आज हम यहां मौजूद हैं। हालेलुया। और कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक क्या करना, एक बर्रा जो है वो निकाल रखना, और ये फसा का बर्रा हो। और उस बर्रे की खुसूसियत ये होनी चाहिए थी कि वो, पहली बात है कि वो बेऐब हो। आमीन। उसके अंदर कोई नुक्स ना हो, उसकी उम्र भी ठीक हो, उसका कद भी ठीक हो, उसकी रंगत भी, उसके जिस्म का एक एक पार्ट बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हो, तब वो खुदा के सामने हैकल में वो कुर्बानी की जाती थी। और वो फसा का बर्रा जो है वो कुर्बान किया जाता था। और लिखा है कि जब वो बर्रा कुर्बान किया जाता था और उसका जो खून है वो उन चौखटों पर लगाया जाता था, बनी इस्राएली कौम की चौखटों पर लगाया जाता था। और आप जानते हैं कि जब मौत का फरिश्ता इस्राएल के अंदर आया, जहां जहां उन्होंने खून देखा वो फरिश्ता वहां से चला गया और वहां अमवात नहीं हुई। हालेलुया। लेकिन एक इलाका ऐसा था जश्न का, जहां उनको जरूरत नहीं पड़ी खून लगाने की, और वह पूरा इलाका जो है खुदावन के फजल से महफूज रहा। आमीन। और खुदा का फजल मैंने बताया उस वक्त भी था। अब ये है बात जो हमने आज सीखनी है कि खुदावंद ने कहा, क्योंकि खुदावंद ने ये मिस्रियों के लिए ये काम किया, मेरे और रात के लिए काम किया, और खुदावंद ने कहा कि ये खून तुमने लगाना है, चौखटों पे लगाना है। और 23वीं आयत में लिखा है कि तुम इस बात को अपने और अपने औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। ये एक रस्म दी गई, ये एक हमें इख्तियार दिया गया है खुदावंद की तरफ से कि हमने ये रस्म अदा करनी है। आमीन। और आज जो हम इशाए रुबानी की मीटिंग कर रहे हैं ये भी इसी की एक कड़ी है। आमीन। क्योंकि पहले अदवार में बैलों और बकरों का खून, बछड़ों का खून जो है बहाया जाता था, कफारा दिया जाता था। लेकिन इसके अंदर हमें दो चीजें और नजर आती हैं। इसमें लिखा कि पहली बात जो ये रस्म है जो पुराने अहदनामे के अंदर है, ये भी हमें अपनी औलादों को, खानदानों को बताना है कि पहली जो इशाए रुबानी की या फसा की मीटिंग हुई वो कहां पर हुई। आमीन। और लिखा है कि जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है। अब देखें यहां लिखा है लफ्ज इबादत, इबादत लिखा है। हम क्या करने के लिए आए आज?
हम खुदावंद की इबादत करने के लिए आए हैं, और ये एक इबादती रस्म बनाई जाती थी, एक इबादत की जाती थी, खुदा के सामने अपने आप को पेश किया जाता था, और अपने आप को साफ और सुथरा करके, साफ कपड़े पहन के काहिन जो थे हैकल के अंदर आते थे। और काहिन की ये खास एक खसूसियत होती थी कि वो अपने आप को पाक और साफ करता था, और अपने अंदर से जो भी गंदगी गलाजत थी वो निकाल के फिर हैकल के अंदर जाता था, और फिर ये कुर्बानी जो खुदा के जोर से गुजरानता था। आमीन। तो आज हमें भी पाक दिली के साथ, नेक नियति के साथ खुदा की इस शायर रबानी में शामिल होना है, और इस इबादत में शामिल होना है। आमीन। और यहां लिखा है कि जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो खुदावंद ने कहा कि तुमने ये कहना है कि ये खुदावंद की कुर्बानी है। क्या है ये? खुदावंद के फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में से इसराइलियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया, और जो सारे घरों को बचा लिया। आमीन। ये पहली वो फसा की कुर्बानी थी जो हमने अहदे अतीक के अंदर देखी। अब हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील के अंदर कि इसके बारे में हमें कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। आमीन। मत्ती की अंजील हम निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 26 और 26 आयत से 49 आयत तक मैं थोड़ा पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि उस वक्त यीशु ने उनके साथ गदसमनी नामी एक जगह में आया और अपने शिगिर्दों से कहा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। यीशु मसीह अपने बाप के साथ क्या करते थे? दुआ करते थे। जैसे भाई बहुत दुआ गो हैं, भाई गुलबाज, भाई जुबेद, बहुत सारे और बहन भाई हैं जो दुआ गो हैं। आमीन। हमें दुआ में ठहरना चाहिए। लिखा है कि उस वक्त उनसे कहा कि मैं बहुत गमगीन हूं, क्योंकि यीशु मसीह जिस्मानी जिस्म के अंदर थे। खुदा का बर्रा जिस्मानी सूरत में आया, जैसे मैं और आप हैं। जिस्म रखते हुए यीशु मसीह कई दफा भूख और प्यास महसूस करते थे। आमीन। और यहां लिखा है कि उस वक्त उसने उनसे कहा कि मेरी जान नहायत ही गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत आ पहुंच चुकी है। तुम यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। इस बच्चे को बेटा बाहर ले जाओ। आज हमें जागने की जरूरत है। आमीन। यहां यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहना है। फिर लिखा है कि वो उसने दुआ की, झुक कर दुआ की और कहा कि बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तब भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा ने अपने बाप की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को बजा लाएं। आमीन। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब ये सब कुछ हो गया तो फिर लिखा कि 12 शागिर्द ने जाकर यूं दुआ, फिर लिखा कि दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये प्याला बगैर पिए टल नहीं सकता, अगर जो तूने ठहराया है अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। किसके लिए? कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है। और कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और उन्हें शिगिर्दों को देखा आकर तो वो नींद से भरी हुई उनकी आंखें थी, और वो जो उनको इतनी ज्यादा नींद आई थी उन्हें फिक्र ही नहीं थी, और वो सो रहे थे। आज यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो फसा का बरा बन के कुर्बानी दी है। अगर आज कलीसिया सोई होगी, कलाम कहता है कि हमें सोना नहीं जागना है। पतरस रसूल कहते हैं कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आज जी उठने के लिए हमें खुदावंद ने कहा है, मरने के लिए नहीं कहा, जी उठने के लिए। अब कई दफा जिंदे लोग भी अपने आप को मुर्दा ही समझते हैं, लेकिन हमें खुदा ने जिंदगी बख्शी है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से बेचैन होते हैं, तंग होते हैं, लेकिन खुदा ने जो जिंदगी दी है, आप सुबह दोपहर शाम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने अपने हमारे इंसान की जिंदगी के अंदर नथनों में जिंदगी का क्या फूंका था? दम फूंका था। तो इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। ये खुदा ने अपनी रूह से हमें जिंदगी बख्शी है, जीती जान बनाया है। तो हमें खुदावंद का क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। और यहां कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पे ये हमें टीचिंग दी और वाज़ेह तौर पे हमें ये तालीम दी। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने
सब बातें देख ली और भीड़ को देख लिया, तो उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप अगर लूका की इंजील जब आप देखते हैं उसका 22वां बाब, तो उसमें दो चीजें आपको वाज़िह तौर पे नजर आएंगी। यानी वहां यीशु मसीह अपने आप को फसह का बर्रा जाहिर करते हैं, जिस तरह के अहद अतीक के अंदर मैंने बताया कि फसह का बर्रा जो उस वक्त होता था, वो क्या करते थे कि उसको क्या करते थे, कुर्बान करते थे। आज खुदा हमसे भी कुर्बानी मांगता है। आमीन। कौन सी कुर्बानी खुदा हमसे मांगता है? सवाल यह है, कौन सी कुर्बानी मांगता है? हालेलुया। बताइए कौन सी कुर्बानी? अपने होंठों की कुर्बानी, अपने दिल की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने रुपए पैसे की कुर्बानी, अपने घर की माल की कुर्बानी, और बहुत सारी और कुर्बानियां हम खुदा के हजूर ला सकते हैं अगर हम उसके घर में इबादत के लिए आते हैं। आमीन। और यहां हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम, जिसको समझने के लिए हमें खुदा से मदद मांगने की जरूरत है। जब हम खुदा से मदद मांगते हैं तो वो अपनी कुदरत के वसीले से हमें देता है। और लिखा है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा। कौन? यीशु मसीह। जब वक्त पूरा हो गया, हमारा भी जब वक्त पूरा होता है तो हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। बगैर वक्त खाना खाए तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं। आमीन। ऐसे ही है ना। लेकिन यहां लिखा है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ बैठते थे। और लिखा है कि उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे मसीहा ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि दुख सहने से पहले मेरी जाती ख्वाहिश थी, मेरा दिल करता था कि जो खुदा ने मेरे लिए ठहराया, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मालिक अगर हो सके तो ये प्याला मैं तो टाल दे, ताकि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होए। उसने अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया। और वो कहता है कि मैं दुख सहने से पहले मेरी जाती ख्वाहिश थी, मैं जॉयफुल था कि मैं अपने शागिर्दों के साथ कुछ वक्त स्पेंड करूं, गुजारूं। आमीन। आज हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है चर्च में बैठना, दुआ करना, कलाम सुनना, गीत गाना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म हो हम जाएं। लेकिन खुदा के लिए सेक्रीफाइस होना, कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है। इशा का मतलब जो होता है वो होता है शाम की वक्त में दुआ करना। इशा रबानी का मतलब है शाम के वक्त दुआ करना या इबादत करना। आमीन। और रुबानी का मतलब है रब, यानी खुदावन, रब खुदावन, रुबूनी। ये यीशु मसीह को बहुत सारे शागिर्द रुबूनी भी कहते थे, अरामी जुबान के अंदर कहा जाता था, यानी रुबूनी यानी उस्ताद भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आमीन। तो इशाए रबानी का क्या मतलब है? शाम की इबादत में खुदा के साथ, रब के साथ जुड़ना। क्या हो गया? बोलिए मेरे साथ ताकि आपको याद हो। शाम की कुर्बानी ये है कि हम इस वक्त खुदा के साथ जुड़ जाएं। ये शायद रुबानी का मतलब है। ये शॉर्ट लफ्ज मैंने आपको बताया है। और लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ फसा खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे फिर कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। आमीन। खुदा ने जो मंसूबा कायम किया था वो खुदा ने पूरा किया है। खुदा मेरे और आपके लिए भी बहुत सारे मंसूबे रखता है। अगर आज हम यहां आए तो तफाकी नहीं आए, या हम जानबूझ के नहीं आए, खुदा में खींच के ले आता है। खुदा हमारे लिए ये मुमकिन करता है, हम ना चाहते हुए भी। यूना के बारे में जानते हैं ना, वो किधर जाना चाह रहा था? तरसीस को जा रहा था ना। खुदा ने उसको खींचा, हलाया उसको। हालांकि वो किधर जा रहा था? आपने देखा बड़ी एक जंग में नजर आती है। बड़ी उसने कोशिश की कि मैं इधर उधर नसा, लेकिन खुदावन ने कहा कि नहीं पुत्र तू वापस आ। और वो किधर आया? नैनवा में आया। और वहां क्या किया उसने? आके मुनादी की। हमें भी आज इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से खींचता है।
और भाई तो इधर ना जा उधर ना जा, लेकिन खुदा अपने लोगों को खींचता है। आमीन। जिस तरह मैंने बताया कि असीरी से खुदा किनको लेकर आया, बनी इस्राएली कौम को निकाल कर आया, और यीशु मसीह के वसीले से हमें उसने असीरी से निकाल के बाप के दहने तख्त में बिठाने के लिए हमें कोशिश की है कि तुम 12 कबीलों का क्या करोगे, इंसाफ करोगे। खुदा अपने साथ हमें बिठाना चाहता है। आमीन। और यहां लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उसने फिर क्या किया, कि फिर उसने उस प्याला को लिया जो अपने शिगिर्दों के साथ शाम के वक्त वो बैठे थे। 12 शिगिर्द वहां बैठे थे। यीशु मसीह ने वो प्याला लिया और शुक्र करके उसको पिया और अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम भी पियो। और उसके बाद फिर उन्होंने वो रोटी ली और कहा ये मेरा क्या है, बदन है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जो आप बदन और खून यीशु का लेते हैं कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर कोई शख्स जहर पीता है तो फौरी तौर पे वो डेथ हो जाती है उसकी। अगर कोई तेजाब पिएगा फौरी तौर पे उसकी डेथ हो जाएगी। कोई केमिकल पिएगा फौरी तौर पे रिएक्शन हो जाता है, ऐसे ही है जी। लेकिन यीशु मसीह का वाहिद लहू है, उसका बदन है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर जब आता है तो सारी गलाजत गुनाह धुल के साफ शफाक बिल्कुल नूर की तरह आपकी जिंदगी को वो कर देती है। आमीन। ये यीशु का लहू है जो बिल्कुल आपको पाक और साफ करके धो देता है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां कि ये उसके लहू की कुदरत है जो हमारी जिंदगी के अंदर आती है, और उसका लहू बहुत ही कीमती है। आमीन। यीशु का लहू बहुत ही कीमती है। और लिखा है कि जब उसने शुक्र किया और उस प्याले को लेकर आपस में उसने कहा कि बांट लो, और उसने कहा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आए। यीशु मसीह जानते थे कि मैंने दुख सहना है, मरना है, जी उठना है, और उसके बाद मुर्दों में से जी उठना है। आमीन। और यीशु मसीह ने यहां एक और बात भी की कि खुदा की बादशाही आनी है भी। यीशु मसीह ने अपनी उस किंगडम को जाहिर करना है। यीशु मसीह ने यहां आसमानी बादशाही के तलक से भी हमें तैयार करने के लिए हमें ये एक की वर्ड दिया है। खुदा ने हमें ये एक खास अल्फाज दिया है जिसे हमें समझना है कि शहरबानी के साथ आसमानी बादशाही का बड़ा तल्लक है, और वो किसके जरिए होगा, यीशु मसीह के बदन और खून के वसीला से। अगर हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अगर उसका बदन और खून पिएंगे तो फिर आसमानी बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। और पौलुस रसूल इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात करता है। मैं रात को जब इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत बरकत मिली। 5वां बाब है, अगर आप निकाल सकते हैं निकालें। 7 और 8 आयत में बहुत खूबसूरत कलाम पौलुस रसूल ने बयान किया खुदावंद के इल्हाम से, पाखरू की कुदरत से। यहां लिखा है पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर क्या करो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें। क्या करें? ईद करें। ईद के लिए जो अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल होता हुआ है मौईद। लफ्ज क्या है? मौईद। मौईद का मतलब अब्रानी में है खुशी, शादमानी, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पी का जो लफ्ज होता है ना, मतलब इसका मतलब होता है ये भी खुशी, लेकिन ये खुशी दुनिया की होती है। किसकी? दुनिया की है। इलाही खुशी जो है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जॉय। हालेलुया। जॉय जो है वो हमें शादमानी देती है, और हैप्पी जो है दुनिया के हमें खुशी देती है। हमें दुनिया की खुशी लेनी है, जॉयफुल लेना है, फैसला आपके ऊपर है। आमीन। क्या क्या आप मानेंगे? कौन सी खुशी लेंगे? जॉयफुल होना, शादमान होना। लिखा शादमान रहो, हमद और तारीफ करो, क्योंकि आसमान और जमीन के अलावा कोई और ऐसी जगह ही नहीं है जहां खुदा की शुक्रगुजारी की से। क्योंकि आसमान पर तो उसकी होती है ना, जमीन जितनी भी है यहां सब शुक्रगुजारी होती है। इसके अलावा कोई जगह आपको नजर ही नहीं आती। अगर कोई नजर आती है तो वो जमीन की तह तक है, वहां भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। समंदर के नीचे जाए वहां भी शुक्रगुजारी। ज़बूर में इसके बारे में बहुत लिखा है कि समंदर, पहाड़, टीले सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए हर एक जगह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें उसको कबूल करना है, यीशु मसीह को कबूल करना है। और यहां कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया, वो कहता है कि हमें इस सैक्रामेंट में दाखिल होने के लिए,
इस इशाए रबानी में शामिल होने के लिए कुछ बातें हैं जो आज बड़ी अहम है, मैं आपसे करना चाहता हूं। यहां लिखा है कि हमें अपना पुराना खमीर, खमीर जानते हैं कि ये किसकी अलामत है, ये किसको जाहिर करता है? हेलो, खमीर, आटा जब हम गूंथते हैं ना तो बीच में थोड़ा खमीर डालते हैं, दूध में थोड़ा सा खमीर डालते हैं तो वो क्या होता है? दही बन जाता है। खमीर किसको जाहिर करता है? पुराने इंसान। नो, खमीर गुनाह को जाहिर करता है। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। आमीन। कलाम ये कहता है कि हमें वो खमीर, उस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है और अपने आप को पाक करना है। गुनाह निकलेगा तो पाकीज़गी आएगी, अगर गुनाह होगा तो पाकीज़गी कैसे आएगी? हवाले को जब आप गौर से पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ होनी चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। वो कहता है पुराना खमीर निकाल दो। अगर आपके अंदर कोई भी गुनाह है, बदी है, तो उसको निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। आज अगर आप खुदा की मेज के सामने आना चाहते हैं तो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा, खुदा को कहना पड़ेगा कि खुदा मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी हूं, मैंने जिंदगी में बहुत दफा गलती गुनाह किया, लेकिन खुदा आज जब मैं तेरे बदन और खून में शरीक हूं तो खुदा तो अपने कलाम के वसीले से जो तूने फरमाया है मुझे धो और साफ कर, पाकर, ताकि वो सारा खमीर जो मेरी जिंदगी के अंदर है वो जाए और तेरे पाक लहू की कुदरत से वो पाक और साफ हो जाए। आमीन। और ये बात यहां पर रसूल ने बताई और उसने कहा कि अब हमारा फसा कुर्बान हुआ है। हमारा फसा कौन है? हमारा फसा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह अगर हमारा फसा का बर्रा है तो वो बर्रा मेरे और आप के लिए कुर्बान हुआ। और अगर मेरे और आपके लिए हमारा फसा कुर्बान हुआ है, यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, तो फिर हमें आज के दिन जो है, जो हमारी मीटिंग है, वो हमारी मीटिंग ऐसी खुशी होनी चाहिए, इसमें शादमानी होनी चाहिए कि जिस तरह एक ईद का त्यौहार मनाते हैं। क्योंकि बनी इस्राएली कौम जो है, जब वो ईद मनाती थी फसा की कुर्बानी, तो एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की जाती थी। आमीन। आज हम भी उस ज़ियाफत के अंदर शामिल हैं। अगर आज हम उस ज़ियाफत को समझते हैं, अगर आज हम उसकी कदर को जानते हैं, तो फिर हमें यीशु मसीह को भी समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और जहां पौलुस ने कहा कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें ना कि पुराने खमीर से। वो कहता है कि अब अगर तुमने यीशु को कबूल कर लिया है, अगर पाक और साफ हो गए हो, तो फिर पुराना खमीर, पुराना गुनाह खत्म कर दो अपनी जिंदगी से। कई दफा होता है कि हम एक गुनाह करते हैं, फिर हम तौबा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तौबा करने के बाद फिर गुनाह में गिर जाते हैं। एक ज़हन में बात रखिएगा कि खुदा गुनाहगार से मोहब्बत करता है ना खुदा गुनाहगार से, लेकिन गुनाह को देख नहीं सकता। आमीन। सो खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कहीं भी खमीर है, कहीं भी गुनाह है, उसे हमें निकालना है ताकि हम पाक और साफ होके इस पाक साक्रामेंट के अंदर शामिल हो सकें। हालेलुया। और यहां लिखा है कि फिर हमें पुराना खमीर निकाल के हमें क्या करना है? बदी और शरारत के खमीर से हमें अपने आप को साफ करना है, पाक करना है और सच्चाई की बेखमीरी रोटी खानी है। आमीन। और आप जानते हैं कि जो शरबानी होती है उसके अंदर खमीर नहीं होता। जितने भी शायरबानी होली कम्युनियन होती है, जो वो रोटी होती है उसके अंदर खमीर नहीं शामिल होता, क्योंकि हमारा फसा कौन है? यीशु मसीह है। उसके अंदर कोई भी खमीर नहीं था। जब यीशु मसीह के अंदर खमीर नहीं है तो उसके बदन के अंदर भी खमीर नहीं है। आमीन। उसके लहू के अंदर भी खमीर नहीं है। हालेलुया। तो हमें जरूरी है कि फिर हमारी जिंदगी से हर तरह का खमीर जो है वो जाता रहे। आमीन। अब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं इस शराबानी के अंदर, इस शायरबानी के अंदर आने के लिए। क्योंकि हम बहुत सारी बातें कलाम मुकद्दस में से पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हम जानते भी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कई दफा हम इग्नोर कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये जो सैक्रामेंट है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मैंने बताया ये बदन और खून लेना को आम नहीं है। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं, वो शौक के साथ, खुशी के साथ आकर इसे कबूल करते हैं। ऐसे ही है ना पैसा, उनको नहीं मालूम होता कि हम क्या ले रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि हम ये जब लेंगे तो इसका मकसद क्या होगा। मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। ये पहला करंथियों है, उसका 11वां बाब 23वीं आयत से मैं यहां पढ़ूंगा। लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। कहां से?
یہ میری طرف سے نہیں ہے کلام. وہ کہتا ہے مجھے خدا کے روح القدس کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ میسج پہنچا کہ میں کلیسیا کو آگے ڈیلیور کر سکوں. آمین. اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خدا یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے اور تمہارے لیے میری یہ یادگاری کا دن کہلایا جائے. یعنی ریمائنڈر دیا گیا کہ اسے کنٹینیو جاری رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو عہد کے اندر بتایا کہ خداوند نے بنی اسرائیلی قوم سے کہا موسیٰ سے کہ اس رسم کو تم نے نسل در نسل کرنا ہے، اگر تمہارے بیٹیاں اور بیٹے پوچھیں تو انہوں نے جواب دینا ہے. آمین. سو آج ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آج کی رسم نہیں ہے، یہ عہد عتیق کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. آمین. اور یہاں لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا سیویئر، میرا خداوند یسوع مسیح میرے لیے، میرے پاپوں کے لیے گناہ کی اس نے کیا کی؟ قربانی دی. قربانی دی، قربان کیا، اپنے آپ کو سیکریفائز کیا. آج ہم قربانی کون سی دے رہے ہیں؟ ہم تو وقت نہیں دے سکتے خدا کو، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے اس کا اظہار کرے جب تک کہ دوبارہ نہ آئے. اس واسطے یہ خاص بات ہے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے. وہ کہتا ہے شرابانی میں شامل ہونا، شرابانی میں شامل ہونے کے لیے پہلی بات اس نے کہا اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر، نامناسب طریقہ کیا ہے اس کو ذرا غور کیجئے گا. لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں کیا ہوگا؟ قصوروار ہوگا. ہمیں یہ سوچ سمجھ کر یہ اشعیا ربانی لینی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی ہم سے ایسا گناہ تو نہیں سرزد ہوا. اگر ہوا ہے تو اس کے لیے بھی خداوند نے کہا کہ تو اقرار کر اپنے ہونٹوں سے، اور اقرار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلکے ہو جاتے ہیں. آمین. ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے سامنے آنا ہے. پس لکھا ہے کہ پس آدمی یعنی اس میں بچے بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، نوجوان سب شامل ہیں. پس آدمی اپنے آپ کو آزمائے، یعنی چیک کرے کہ کیا میرے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، جیسے میں نے برے کے بارے میں بتایا. اور لکھا ہے کہ اپنے آپ کو آزمائے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم سے بتیرے کمزور اور بیمار اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. یہ سچویشن دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ ہم اشعیا ربانی لے رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ لے رہے ہیں اس کے بارے میں 3 باتیں واضح پر رسول نے کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب بتیرے اس میں کیا ہے؟ ویکنس ہے، کمزور ہیں. جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، روحانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. نمبر 2 وہ کہتا ہے بہت سارے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، بہت سارے بیمار ہو گئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بیماری لگی ہے. آمین. سو خدا کا کلام کلیئر کرتا ہے شعر ربانی کے تعلق سے. اس لیے یسوع مسیح کا خون میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا تاکہ جو کوئی پیے وہ ہمیشہ کی زندگی میں آئے. آمین. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں فسح کی قربانی جو ہے وہ نامناسب طور پر نہیں لینی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا اصول ہمیں توبہ کرنی ہے. نمبر 2 اقرار کرنا ہے. تیسرا بپتسمہ لینا ہے. اور چوتھا پہلو ہے خداوند کی وفاداری تابعداری میں آنا ہے. آمین. اور جب یہ 4 پلرز، 4 کی ورڈز، 4 پوائنٹ آپ کی زندگی کے اندر ہوں گے آپ خدا کی میز کے سامنے آ سکتے ہیں. آمین. سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں. سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کو سنبھال کر رکھے. اور آج کا یہ سارا میسج جو ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. آئے ہم سب آنکھیں بند کریں گے، کلام کی شکر گزاری کریں گے. سب آنکھیں بند ہو جائیں اور پاسٹر شاہد سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور آج کی سارے اس میسج کے لیے، ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کی دعا خداوند کے سامنے رکھیں، شکر گزاری کریں.